Hello my all dear students, welcome to my YouTube channel. Myself Prakash Vadhwana. Today here in this video we are going to study and we are going to continue the first chapter of class 7th English medium subject English, and this is the fourth part of this chapter. I hope you all have watched the previous 3 parts of this chapter, and still if you haven't watched, then please watch it so that you will understand this chapter very well. Okay, so now in this video, in this part, we are going to study activity 10, and in this activity one story has given about dream. Okay, so without wasting the time, let's start. During the story I will explain past form, I will explain the meanings of the hard words. Okay, and at the end of this story I will also explain the summary of this story. Okay, and this is a very interesting story. It's a very interesting symbolic story about dream. Okay, and if you haven't subscribed my channel, then please subscribe it. Okay, now let's start. One night Emperor Akbar dreamed that he had lost all his teeth except one. Okay, so now what happened? One night Emperor Akbar dreamed that. Now dreamed means what? Dreamed is the past form of dream, and dream means what? Sapna. And dream is a series of images, events and feelings that happen in our mind, but when we are asleep, when we are in deep sleep, at that time whatever the series of images, events and feelings happen in our mind, it is called dream. And here dreamed is the past form of dream. Okay, so what happened? One night Emperor Akbar had a dream, and in that dream he had lost all his teeth except one. Okay, so he had lost all, but one of his teeth is remain. So एक दिन रात को एम्परर अकबर को एक सपना आया. उस सपने में उनके सारे के सारे जो टीथ थे वो गिर गए एक्सेप्ट वन, एक ही टीथ बचा. ओके, now the next morning he invited all the astrologers of his kingdom to interpret this dream. Now next morning what happened? Emperor Akbar thought that what is this dream represent? इसका मतलब क्या है? ये ऐसा सपना मुझे क्यों आया? Why I had this type of dream last night? सोच रहा था वो, and that is why next morning he called all the astrologers of his kingdom. उसके किंगडम के अंदर जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स थे. Now astrologers means what? Astrologers means a person who tells people about their character. आपका कैरेक्टर कैसा होगा?
व्हेन वी आर बॉर्न, जब हम बॉर्न होते हैं ना, उसके बाद हमारी कुंडली बनाई जाती है ज्योतिष के पास, और कुंडली में सब लिखा होता है कि भाई कब हमारी शादी होगी, हमारा नेचर कैसा होगा, ठीक है। सो एस्ट्रोलॉजर्स मीन्स अ पर्सन हु टेल्स पीपल अबाउट देयर कैरेक्टर एंड फ्यूचर, बट कैसे? फ्रॉम द स्टडी ऑफ द पोजिशंस ऑफ स्टार्स एंड मूवमेंट्स ऑफ द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स की मूवमेंट्स और स्टार्स की पोजीशन को स्टडी करने के बाद आपका जो फ्यूचर देखते हैं ना जो लोग, जिसको हम क्या कहेंगे, ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर्स। सो उन लोगों को राजा ने अपने किंगडम में बुलाया अपने ड्रीम को इंटरप्रेट करने के लिए। नाउ इंटरप्रेट मीन्स व्हाट? टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ समथिंग, समझाने के लिए। भाई लास्ट नाइट मेरे को ऐसा ड्रीम आया था, उसका मतलब क्या है, प्लीज़ मुझे आप लोग समझाओ। सारे के सारे एस्ट्रोलॉजर्स को बुला के बोला उन्होंने। एंड नाउ व्हाट हैपन नेक्स्ट? आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेसाइज्ड दैट ऑल हिज रिलेटिव्स वुड डाई बिफोर हिम। सो नाउ व्हाट हैपन? द एस्ट्रोलॉजर्स इंटरप्रेटेड Emperor Akbar's dream, and they prophesied that. Prophesied means what? To say what will happen in future. एस्ट्रोलॉजर्स ने सब कुछ स्टडी किया, बहुत सारे डिस्कशन के बाद वो ये नतीजे पे पहुँचे और उन्होंने ऐसा कहा कि भाई फ्यूचर में आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं ना, वो आपसे पहले क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ऑल द रिलेटिव्स वुड डाई बिफोर हिम, उनके पहले सारे के सारे रिलेटिव्स मर जाएंगे फ्यूचर में। ऐसा एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या किया, प्रोफेसाइज्ड। प्रोफेसाइज मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है। ओके, नेक्स्ट, एम्पेरर अकबर वॉज वेरी अपसेट बाई दिस इंटरप्रिटेशन एंड सो सेंड अवे ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स विदाउट एनी रिवार्ड। नाउ आफ्टर लिसनिंग द एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन, एम्पेरर अकबर गॉट अपसेट, बहुत ही उदास हो गए, बिकॉज सारे के सारे रिलेटिव्स क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे उनके पहले, और बाद में वो मरेंगे। सो ही वॉज वेरी अपसेट। दैट इज़ वाई एम्पेरर अकबर सेंड अवे ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स, सबको भेज दिया विदाउट एनी रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मीन्स व्हाट? अ थिंग और अ मनी यू गेट फॉर डूइंग समथिंग। पहले के ज़माने में अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो ना, तो राजा आपको खुश होकर कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देते थे, तोहफा देते थे, गिफ्ट देते थे, या फिर पैसे देते थे। बट हियर व्हाट हैपन? द इंटरप्रिटेशन वॉज सो बैड दैट एम्पेरर अकबर डिडंट लाइक। दैट इज़ वाई ही सेंट अवे ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स विदाउट एनी रिवॉर्ड. Okay, so the astrologers did not get any reward from the Emperor Akbar because Emperor Akbar got upset with their interpretations. And what was the interpretations? The astrologers interpreted that Emperor Akbar's dream that all his relatives would die before him. Okay, and what was the dream? And the dream was that Emperor Akbar lost all but one of his teeth. सारे के सारे टीथ जो है वो गिर गए सिवाय एक की. तो ये सपने का उन लोगों ने इंटरप्रिटेशन किया और फिर प्रोफेसाइज किया कि सारे के सारे रिलेटिव्स उनके पहले मर जाएंगे. कब? इन फ्यूचर. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट. लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, बीरबल एंटर्ड द दरबार. उस दिन के बाद कौन आया? बीरबल दरबार के अंदर एंटर हुआ. तो दरबार मीन्स व्हाट? दरबार एक हिंदी वर्ड है, बट हियर दरबार मीन्स कोर्ट के अंदर एंटर हुआ. नाउ एम्परर अकबर रिलेटेड हिज ड्रीम. एम्परर अकबर ने अपना ड्रीम उसके सामने रिलेट किया. नाउ रिलेट मीन्स व्हाट? टू शो, बताया, और मेक अ कनेक्शन बिटवीन टू और मोर थिंग्स. और उनको पूछा कि भाई बीरबल, मेरे सपने में रात को ऐसा सपना आया था, उसका कनेक्शन क्या है फ्यूचर के साथ, और क्यों मुझे ऐसा सपना आया, उसको प्लीज़ आप इंटरप्रेट करके दो, समझा के दो, एक्सप्लेन करके दो. ओके, आफ्टर थिंकिंग फॉर अ वाइल, बीरबल रिप्लाइड दैट द एम्परर वुड लिव अ लॉन्गर एंड मोर फुलफिल्ड लाइफ देन एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स.
नाउ आफ्टर लॉट्स ऑफ थिंकिंग, बहुत सोचने के बाद बीरबल ने क्या रिप्लाई दिया कि हमारे जो एम्परर है ना, एम्परर अकबर, वो तो बहुत लंबी लाइफ जीने वाले हैं, मोर फुलफिल, बहुत सारी हेल्दी और वेल्दी लाइफ जीने वाले हैं। जितना उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं ना, वो नहीं जी पाएंगे, वैसी ही फुलफिल्ड और हेल्दी लाइफ मेरे एम्पायर जीने वाले हैं लंबे समय तक। ओके, तो बीरबल ने शॉर्ट टाइम लिया सोचने के लिए और तुरंत ही रिप्लाई कर दिया कि भाई मेरे एम्पायर तो जो है, मतलब आप कैसी लाइफ जीने वाले, बहुत लंबे समय तक आप जीने वाले हो, और वो भी हेल्दी और वेल्दी लाइफ, और ऐसी लाइफ आपका एक भी रिलेटिव्स नहीं जिएगा। ओके, नाउ आफ्टर लिसनिंग दिस इंटरप्रिटेशंस, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, लेट्स सी। एम्परर अकबर वाज प्लीज्ड with Birbal's explanation and rewarded him handsomely. Now Emperor Akbar got pleased, quite satisfied, because the answer of the Birbal was positive, and he was quite satisfied with the explanations of Birbal. That is why he rewarded him handsomely. Now here handsomely means very very large sum of money, very large amount. खुश होकर एम्परर अकबर ने बीरबल को बहुत सारे पैसे दिए। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। नाउ लेट्स रिवाइज द स्टोरी, लेट्स डिस्कस द समरी। So what happened? One night Emperor Akbar dreamed that he had lost all his teeth except one, and the next morning he invited all the astrologers of his kingdom to interpret his dream, and they told about the future, that all his relatives would die before him, and Emperor Akbar was very upset and turned out all the astrologers unrewarded. Later, Birbal was asked to interpret the dream. Now, Birbal said that Emperor would live a longer and more fulfilled life than any of his relatives. So, Emperor was pleased with Birbal's interpretations and rewarded him handsomely. Okay. Now, let's move on to the next paragraph. आई होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ड्रीम्स समथिंग मोर। नाउ मैनी पीपल बिलीव दैट द ड्रीम्स हैव सिम्बॉलिक मीनिंग, बट पीपल मे इंटरप्रेट द सिम्बॉल्स वेरी डिफरेंटली। सम पीपल्स, आधे लोगों का ऐसा मानना है ना कि ये जो ड्रीम्स है ना, वो क्या है, एक सिम्बॉलिक मीनिंग है, उसका कुछ और ही मीनिंग निकलता है, लेकिन लोग उस सिंबल को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा ना, एस्ट्रोलॉजर्स ने कुछ और कहा और बीरबल ने कुछ और कहा, तो हम पॉजिटिवली क्यों उसको सिंबलाइज ना करें। वो लोग कह रहे थे कि भाई आपके सारे के सारे रिलेटिव्स मर गए, आपके सारे टीथ गिर गए, इसके मतलब आपके सारे के सारे रिलेटिव्स मर जाएंगे आपसे पहले। बट बीरबल ने क्या कहा कि एक टीथ बचा, इसका मतलब सारे के सारे जो रिलेटिव्स हैं ना, उससे कई ज़्यादा अच्छी लाइफ मेरे एम्परर अकबर जिएंगे। तो यहाँ पे ड्रीम्स तो एक होता है, लेकिन अलग अलग इंसान, डिफरेंट पीपल्स उसको सिंबलाइज अलग अलग तरीके से करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशंस उसको अलग अलग तरीके से समझते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, मैनी पीपल ड्रीम ऑफ प्रॉब्लम्स दैट दे आर हैविंग इन लाइफ। जितने भी लोग होते हैं ना, उनको बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं, किसके बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में। बट वो कौन से होते हैं, पूरा दिन उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, वही चीज़ उनको रात में सपने में आती है। ओके, और दूसरे पीपल क्या सोचते हैं, बट सम पीपल माइट थिंक ऑफ दैट प्रॉब्लम एज ए ह्यूज माउंटेन दैट नीड्स टू बी ओवरकम। और दूसरे पीपल शायद ऐसा मानते हैं कि भी ये जो प्रॉब्लम है ना उनकी, वो तो किसके जैसी है, बड़े से बड़े माउंटेन जैसी है, बट उसके लिए सिर्फ क्या ज़रूरत है, ओवरकम होना। उसमें से क्या होना है, ओवरकम। ना ओवरकम मीन्स व्हाट, ओवरकम मीन्स टू सक्सीड इन डीलिंग with or controlling a problem that has been preventing us from achieving something.
हमको क्या होना है, ओवरकम, मतलब वो चीज़ में से, प्रॉब्लम में से बाहर आना है, वो भी कैसे, सक्सेसफुली। और प्रॉब्लम के ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, हम उससे कैसे बचे और उस प्रॉब्लम में से अचीवमेंट कैसे हासिल करें, वो चीज़ हमको आनी चाहिए, फिर चाहे कितना भी बड़ा माउंटेन जैसी प्रॉब्लम क्यों ना हो हमारी लाइफ में। ओके, तो सम पीपल ऐसा भी बिलीव करते हैं। नाउ अनदर पर्सन माइट ड्रीम ऑफ अ प्रॉब्लम एज अ लॉक डोर दैट नीड्स अ की। आधे लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई प्रॉब्लम तो क्या है, ड्रीम ऑफ अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम एक लॉक्ड दरवाजे जैसी है, दरवाजे के ऊपर सिर्फ ताला ही लगा है, सिर्फ आपको उस की को लेके उसको खोलना ही है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आधे लोग पॉजिटिवली वो चीज़ को देखते हैं। यहाँ पे आधे लोग क्या सोचते हैं कि भाई प्रॉब्लम तो है ना, वो एक लॉक दरवाजे की तरह है, बस उसकी चाबी आप लो और खोल दो, बस चाबी कौन सी लगे, वो चाबी सही होनी चाहिए, बस सिर्फ चाबी होनी चाहिए, की होनी चाहिए। मतलब आपको उस तरह से सोचना है। प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती है, उसके सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, बस आपको उसके ऊपर सिर्फ सोचना है, थिंकिंग करनी है। अनदर माइट सी अ हाई वॉल एज अ सिंबल ऑफ अ प्रॉब्लम। आधे लोग क्या देखते हैं, हाई वॉल, बड़ी दीवार एज अ सिंबल, प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं वो, कि ये बहुत बड़ी दीवार जो खड़ी कर दी है ना, अगर हम बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दे, जैसे कि बुर्ज खलीफा नाम की एक बिल्डिंग है दुबई में, कितनी बड़ी है, तो आधे लोग प्रॉब्लम को इतनी बड़ी दीवार के जैसे प्रॉब्लम को देखते हैं। बट सिर्फ उनको क्या करना है, एक सॉल्यूशन ही सोचना है ना, एक चाबी ही ढूंढनी है कि भाई इसको मतलब इस चीज़ में से हम कैसे बाहर आए, उसका सॉल्यूशन कैसे लाए। ओके, तो ड्रीम एक ही होता है, ड्रीम का सिंबॉलिक मीनिंग बहुत कुछ करते हैं, ड्रीम सेम होता है लेकिन उसको इंटरप्रेट हम बहुत सारी तरह से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल में देखा। ओके, जैसे फॉक्स और रैबिट की जो स्टोरी थी हमने पढ़ी, उसमें भी हमने देखा था, वो थर्ड पार्ट में मैंने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, आप देख लेना। ओके, नाउ नेक्स्ट ईयर थिंक्स ऑफ सम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दैट कैन सिंबलाइज दीज आइडियाज़। ये आइडिया को अच्छे से सिंबलाइज करने के लिए दूसरी बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि अ प्रॉब्लम माइट बी सिंबलाइज्ड बाय अ ब्लैंक और अ ब्लैंक। तो प्रॉब्लम जो है उसको हम शायद किसके साथ सिंबलाइज कर सकते हैं, वर्लपूल, क्या, वर्लपूल, और नोट और जलेबी। क्योंकि प्रॉब्लम को हम कैसे देखते हैं, उसको वर्लपूल के साथ भी हम कंपेयर कर सकते हैं ना। वर्लपूल मीन्स व्हाट, जब तूफान आता है ना, तूफान, तब वो जो गोल 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 धूल की डमरी होती है ना, वो कितनी गोल 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 घूमती है। और दूसरा एग्जांपल, जब हमको चक्कर आते हैं तब भी सब गोल 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 घूमने लगता है ना। तो आधे लोग प्रॉब्लम को वैसे ही देखते हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम में से बाहर नहीं निकल पाते। और दूसरा है नोट, KNOT। नोट मीन्स क्या है, रस्सी के अंदर हम जो गांठ बांधते हैं ना, वो एक बार गांठ बांध दी हमने तो वो खोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम को हम नोट के साथ भी सिंबलाइज कर सकते हैं। और जलेबी, जलेबी भी क्या है, एक गोल 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 है, स्वीट। तो प्रॉब्लम को हम और ज़्यादा घुमाते रहते हैं, उसमें से बाहर निकलने की ट्राई नहीं करते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम को हम 3 चीज़ों के साथ सिंबलाइज यहाँ पे कर सकते हैं, एक तो वर्लपूल है, नोट है और जलेबी। ओके, नाउ सॉल्यूशन टू ए सीरियस प्रॉब्लम, और कोई भी सीरियस प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किसके जैसा होता है पता है, और शायद हम उसको किसके साथ सिंबलाइज कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, आपके पास बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन उसको आप एक लाइटन्ड लैंप के साथ सिंबलाइज कर सकते हो। अब एक दिया है, दिवाली के टाइम पे हम दिया जलाते हैं ना, वो एक अंधेरी रूम है, रूम के अंदर उजाला करना है, तो हमको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, माचिस लेके
जलाना ही पड़ेगा ना, पहले माचिस जलानी पड़ेगी और दिया जलाना पड़ेगा। हमने क्या किया, सिर्फ माचिस को जला के दिया ही जलाया है ना। और दूसरा एक चीज़ है पील्ड बनाना। अगर केला जो है उसको आपको खाना है तो उसको सिर्फ आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सिर्फ पील ऑफ ही करना है, तभी आप खा सकते हो ना। तो जो सीरियस प्रॉब्लम है ना उसका सॉल्यूशन भी इतना ही है, आपको सिर्फ शांति से बैठ के ठंडे दिमाग से सोचना है। अंधेरे वाली रूम थी, सिर्फ लैंप को हमने लाइट किया तो पूरी रूम में उजाला ही उजाला हो गया। और बनाना खाना है तो सिर्फ हमने पील ऑफ किया उसके छिलके को और हमको खाने को मिल गया। तो सीरियस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो भी इतना ही इजी है, कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको सोचना ही होता है। और ग्रोइंग अप, अगर कोई चीज़ ग्रो होती है उसको हम किसके साथ सिंबलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेप्ट के साथ। डेप्ट के मतलब उधारी। एक बार अगर आपने किसी के पास से पैसे उधार ले लिए ना तो फिर उसमें से आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। क्यों? क्योंकि वो बढ़ती ही जाएगी। एक बार एक पर्सन के पास से आपने पैसे लिए बट उसको देने के लिए आप फिर दूसरे इंसान से पैसे लोगे, उसको तो ख़त्म हो गया, फिर दूसरे का बाकी रहा ना, फिर उसके लिए तीसरे के पास से लोगे। इस तरह से आपकी जो डेप्टनेस है ना उधारी को बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। इसलिए ग्रोइंग अप को हम डेप्ट के साथ भी सिंबलाइज कर सकते हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि इट ग्रोज अप वेरी क्विकली। कैसे बढ़ता है वो? वेरी क्विकली। आपकी उधारी जो है वो क्विकली ग्रो अप होती है। और प्लांट के साथ भी उसको कंपेयर कर सकते हैं। फटाफट नहीं बढ़ेगा तो धीरे 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 तो बढ़ेगा ही ना। बिकॉज इट ग्रोज अप वेरी स्लोली और अ चाइल्ड। जैसे हमारी हाइट जैसे धीरे 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 बढ़ती है ना, जैसे हम धीरे धीरे ग्रो अप होते हैं, प्लांट जैसे धीरे 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 बड़ा होता है, वैसे ही जो डेप्थनेस है वो या तो क्विकली या तो स्लोली बट बढ़ेगी तो ज़रूर। ओके, तो ग्रोइंग अप को हम माइट भी किसके साथ सिंबलाइज कर सकते हैं? डेप्थ के साथ, प्लांट के साथ और चाइल्ड के साथ। ओके, तो ये आइडियाज़ को हम अभी यहाँ पे सिंबलाइज कर रहे हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है लर्निंग माइट बी रिप्रेजेंटेड बाय। अब लर्निंग को हम किसके साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं? शायद स्पॉन्ज के साथ। स्पॉन्ज, नाउ स्पॉन्ज मीन्स व्हाट हियर स्टूडेंट्स? पता है आप लोगों को स्पॉन्ज? स्पॉन्ज मीन्स एक स्मूथ मटेरियल होता है, सॉफ्ट मटेरियल होता है। शायद आपको पता हो, आपने देखा हो कि घर पे मम्मा बर्तन मांजती है ना, तब एक स्पॉन्ज आता है बर्तन को साफ़ करने के लिए। बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है। टीवी में भी उसका ऐड आती है। और बॉडी को क्लीन करने के लिए भी हम स्पॉन्ज का इस्तेमाल करते हैं, शायद आपने देखा हो तो। और जो स्पॉन्ज होता है ना वो क्या करता है, इजीली सब चीज़ को एब्जॉर्ब करता है। सपोज उसको पानी में डाल देना तो उस पानी को वो तुरंत ही एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई भी लिक्विड चीज़ को। ओके, दैट इज़ वाई। और लर्निंग को उसके साथ कंपेयर किया गया है, रिप्रेजेंट हम स्पॉन्ज के साथ कर रहे हैं। क्योंकि लर्निंग भी एक ऐसी प्रोसेस है जो हम क्या करते रहते हैं, गेन करते रहते हैं ना। कहीं से भी कुछ भी नॉलेज मिलता है हम क्या कर लेते हैं, उसको गेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। नॉलेज तो कहीं से भी मिलता है और हमको उसको क्या करना है, ले लेना है। तो जैसे स्पॉन्ज सारी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है ना, वैसे लर्निंग भी हम सारी चीज़ क्या करते हैं, तुरंत ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो लर्निंग को भी स्पॉन्ज के साथ कंपेयर हम कर सकते हैं। रेक्सिन टाइप का मटेरियल होता है स्पॉन्ज। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट पार्ट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा सिंबल मतलब क्या। एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि हमारे इंडिया की बहुत सारे सिंबल हैं, जैसे कि
कोई कंट्री में हम गए हैं, उसमें 10 फ्लैग लगे हुए हैं, लेकिन इंडिया का फ्लैग हमको पता चल जाता है ना, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या होगा, सेफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन कलर की 3 स्ट्राइप्स होते हैं, और बीच में जो व्हील होता है ना, वो क्या सिंबल है किसका, इंडिया का, पता चल जाता है कि ये इंडिया का है। फिर दूसरा सिंबल जैसे कि करेंसी, हमारी जो करेंसी है उसके ऊपर र लिखा होता है, उसका भी एक सिंबल है र नाम का, नोट्स पे आप देख सकते हो, बराबर। तो ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं जो रिप्रेजेंट करता है हमारी कंट्री को। ओके, सो इफ़ यू लाइक this video, then please like it, share it. Still, if you haven't subscribed my channel, then subscribe it so that you will get the notifications of my next upcoming newly videos. And for that you have to also press the bell icon, otherwise you will not get the notifications. Okay, thank you very much.